screen to you on. So, in previous lecture, we studied this first example of Quine-Mac-Lusky method. Okay. This example also solve using the K-map and verify our answer with K-map and with Quine-Mac-Lusky answer. Okay. So both answers are same. This answer of Quine-Mac-Lusky method B bar C bar plus CD, and this answer of K-map. Okay, B bar C bar plus CD. Okay. So next example is minimize the four variable logic function using K-map and verify your answer using the Quine-Mac-Lusky method. So example is the f of a, b, c, d is equal to summation of mean term 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14. Okay. So this example for solve using the K-map. So using the K-map, these are the five grouping is there. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Sorry, yeah, 5. So these five grouping are there, and this is their related equation. Okay. So this is 1. So here 1 की ग्रुपिंग नहीं हो रही, सो इसका आंसर क्या आएगा? दिस आंसर इज दी सी बार, सॉरी सी डी ए बी सी बार डी. ओके. So you check your side this K-map. Okay, and solve it. So we will solve this example using K-map, sorry, using Quine-Mac-Lusky method. Okay, shall I start? Anyone? Yes, ma'am. Okay. So first, this given example is summation of mean term 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14. So first write the binary number of each mean term. So binary number of 0 is 0, 0, 0. Binary number of 2 is 0, 0, 1, 0. Then 8, 1, 0, 0, 0. Then 9, 1, 0, 0, 1. Okay, likewise, first write the binary number. After that, make the grouping of uh, mean terms using the number of ones. Okay, so in first group there are four variable a b c d, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिखे a b c d. ओके. सो फर्स्ट ग्रुपिंग, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वन चाहिए? 0th नंबर ऑफ, सो 1. यहाँ पर कुछ भी ये नहीं है, 1 है. ओके. सो अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो ये ग्रुप बनता या नहीं बनता? कौन बताएगा आंसर? अगर सपोज मेरे क्वेश्चन में 0 नहीं होता तो ये ग्रुप आता ही नहीं. ओके. सो नंबर ऑफ 0 का कुछ सवाल ही नहीं, डायरेक्टली नंबर ऑफ 1 से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो नंबर ऑफ 1, सो ये 3 नंबर्स इसमें आ रहे 1 2 3, जिसमें कि नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 3. 1 2 3, ये नंबर ऑफ 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है. देन नेक्स्ट ग्रुप देर आर नंबर ऑफ 1 are 2, 1 2 1 2 1 2. Then third group, in that number of ones are 3, 1 2 3 1 2 3. Okay. So next step is make the group, right? So try to compare a group of 0 to the group of 1. Then try to compare group of 0 to group of 3. Try to compare group of 0 to 3. Okay. So start करते हैं. So first group 0 में first mean term है 0. So try to combine this mean term to the 1. So compare this 0 compare with 1. So 0 0 0 0 0 0. So 0 1, there is only one different term. Okay. So write for 0 1 mean term, then इसके आगे लिखना है 0 0 0 0 0 0 and dash. So यहाँ पर देख लो 0 1 0 0 0 dash.
समझ में आया? सो कोई मुझे नेक्स्ट टर्म बता सकता है? एनीवन? सो 0 को मैच करो 2 के साथ. So match with 2 and give me the answer. There is a matching is possible or not? Hello? 0 0 dash 0. So 0, that means a 0 comma 2 mean term, and your binary numbers are 0 0 dash 0, right na? Yes, ma'am. Okay, check करते 0 2 0 0 dash 0, good. Then 0 8 के साथ भी मैच हो रहा है, 0 डैश, सो 0 1 एक डिफरेंट मिल रही है, 0 0 0, सो डैश 0 0, 0 8 के साथ डैश 0 0, राइट? सो अब 0 3 के साथ मैच हो रहा है या नहीं? कोई बोल सकता है? नो, ओके. सो अब यहाँ पर 0 किसी के भी साथ आके मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट ग्रुपिंग, नेक्स्ट ग्रुप 1, उसके अंदर 3 टर्म्स है, उसको मैच करना है. सो 1 को मैच करो, 1 3 के साथ मैच हो रहा है यानी ये चेक करते हैं. 0 0 देन 0 0 0 डैश, मतलब 0 1 एक डिफरेंट है और ये 1 है. सो 1 3 में क्या मैचिंग मिल रही है? 0 0 डैश 1, 1 3 में 0 0 डैश 1. ओके, सो नेक्स्ट, देन 1 5 के साथ मैच करो तो हो रहा है. 1 5 के साथ हो, पॉसिबल है तो आप नोटबुक लेकर बैठो. सो मैच हो रहा है या नहीं? 0 dash 0 1 1. 1 5 ना? Yes, ma'am. 1 5 0 डैश 0 1, ओके गुड. देन 1 9 के साथ हो रहा है मैच? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. बाइनरी नंबर Dash डैश 0 0, Dash 0 0 1. ओके गुड. अब 2 किसके साथ मैच हो रहा है वो बोलो. 1 का काम कंप्लीट है, 1 फिनिश आए थे. 7 के साथ करके देखा कि आपने 0 डिफरेंट नहीं हो रहा है. 1 11 के भी साथ शायद मैच नहीं होगा, 1 14 के भी साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो कर सकते हैं आप, यहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं आई थिंक. यस? Yes, ma'am. ओके गुड. Yes, ma'am. जो एक मेन पॉइंट है, मुझे हर एग्जांपल में इसके लिए ले रही हूँ कि जिसमें अलग अलग कुछ अलग एग्जांपल, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो ये एग्जांपल में एक जो प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो अलग क्यों है एग्जांपल, ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं. सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि सब मैच हो रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पर अगर आप 14 टर्म को अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो जहां पर मैंने टिक नहीं की है, राइट? आप अगर 0 सबके साथ मैच करके देखा, 1 भी देखा, 9 भी देखा, सबके साथ है ना, यहाँ तक सब कुछ मैच मिल रहा है, कुछ ना कुछ. 11 किसी के तो साथ मैच मिल रहा है, 7 भी किसी के साथ मैच मिल रहा है, 9 भी. लेकिन 14 ये टर्म ऐसी है जो यहाँ तक आई नहीं. अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर 14 का ही नंबर दिखाई दे रहा है आपको? कोई भी देख लो, 14 नंबर नहीं, क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ मैच ही नहीं हो रहा है, राइट? सो इस केस में क्या करना है आपको? उसको अगर आप देखते हो तो मैंने टिक नहीं की, इसका मतलब ये कि वो अभी तक मतलब वो किसी के साथ मैच नहीं हुआ. इसीलिए अगर ऐसी टर्म है जो किसी के साथ मैच नहीं होती, उसको एट द एंड कंसीडर करना है, मतलब लास्ट 4 to 5 स्टेप में उसको क्या करना है? कंसीडर करना है. मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी टर्म मैच नहीं हो रही, हर टर्म किसी का ना किसी के साथ मैच होके इस मीन टर्म में प्रेजेंट है. लेकिन 14 टर्म ऐसी है जो किसी के भी साथ मैच नहीं हुई. सो इसको कहाँ आप कंसीडर करना है? ये इस यहाँ पर मैच नहीं हुई, इसका मतलब वो यहाँ पर भी नहीं आएगी. तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर कंसीडर करना है. ओके, समझ में मैंने क्या बोला अभी? एनीवन? Yes, ma'am. जो भी टर्म मैच नहीं हो रही उसको लास्ट में कंसीडर करना है. सी अभी 14 हमारे लिए पेंडिंग है, ठीक है?
अब 14 को डायरेक्टली लास्ट स्टेप में कंसीडर करना है, यहाँ पर उसको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हमारा इवैल्यूएशन वो कहा था पहले 0 to 11 टर्म के साथ, ओके। तो नेक्स्ट टर्म में यहाँ तक आपने किया, राइट, आपका आंसर ये आया है ऑलरेडी मैच होके, ठीक है। अब अगेन इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, 0 1 किसके साथ मैच करना है, 1 3 के साथ, 0 1 1 5 के साथ मैच करना है, 0 1 ये 1 9 के साथ मैच करके देखना, 0 1 ये 2 3 के साथ मैच करके देखना, देन 0 1 ये 8 9 के साथ मैच करके देखना। लाइकवाइज अगर ऐसा मैच करते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी एक टर्म लेनी है मुझे, 0 8 हम 8 9 के साथ मैच करके देखते हैं, 0 8 8 9 के साथ अगर मैच करते हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, नहीं होगा मैम। 0 8 नहीं मिलेगा, ओके। 1 5 और 3 11 मिल रहा है क्या, 1 5 एंड 3 11, 1 5 एंड 3 11 मिल रहा है मैचिंग, No, ma'am. नो, क्यों नो, 1 3 एंड 5 मैंने क्या बताया, 1 3 एंड 5 11 या 3 11, ओके। 1 3 एंड 3 11 चेक करते हैं, 0 डैश, ओके नहीं, ओके, 2 डिफरेंट टर्म है, ओके। सो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। सो इसका जो भी आउटपुट है वो कौन से स्लाइड में यहाँ पर है, लास्ट स्टेप में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फिर से मैच करते मैं, अगर ये टर्म 0 1 2 3 अगर 1 3 5 7 के साथ मैच करती हूँ तो पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक टर्म डिफरेंट नहीं मिल रही, ज्यादा टर्म है। सो 0 0 सेम है, लेकिन 0 डैश है, डैश डैश, लेकिन डैश 1 है, तो ये टर्म क्या है, डिफरेंट है, ओके। सो यहाँ पर अभी मैचिंग पॉसिबल है क्या, नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, अब ये हमारा टेबल, ओके, पीआई टेबल। सो अगेन पीआई टर्म, डेसिमल नंबर एंड मीन टर्म, ये यहाँ तक किसी को कौन से टेबल में प्रॉब्लम होगा तो प्लीज पूछो, प्रॉब्लम है या नहीं, नहीं होगा तो मैं ये एक टेबल एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्रॉब्लम है किसी को, नो मैम। कंटिन्यू करूँ, यस मैम। ओके। सो पीआई टर्म्स, सो ये पीआई टर्म्स मतलब क्या है कि ये किसी के भी साथ नहीं मैच हुई। सो हमारी फर्स्ट टर्म ऐसी थी जो किसी के साथ नहीं मैच हुई, तो वो थी 14, राइट। सो 14 के लिए क्या नंबर आ रहा है, 1 1 1 0, ओके। सो ये 1 1 0 इज नथिंग बट द ए बी सी डी बार, ओके। 14 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 1 0, और उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ए बी सी डी बार, ओके। सो वो पहले हमें यहाँ पर लिखना है, सो ए बी सी डी बार, और जो भी नंबर है वो 14, ओके। देन ये हमारा लास्ट, इसका पीआई टेबल बनाने से पहले ये लास्ट में आया था, राइट। तो यहाँ पर अगर चेक करते थे ए बी बार और ये ए बी बार, ये टर्म सेम है, 0 1 2 3 0 2 1 3, ये दोनों भी क्या है यहाँ इस केस में सेम है। सो हम एक ही बार लिखेंगे ए बार बी, और उसके आगे नंबर लिखेंगे 0 1 2 3, ए बार बी बार 0 1 2 3, ओके। हाँ, और नेक्स्ट टर्म है ये ए बी बार हुआ, देन क्या है बी बार सी बार। सो बी बार सी बार के आगे कौन सा नंबर है, 0 1 8 9। अंकिता शिंदे, कुछ प्रॉब्लम है आपको, अंकित शिंदे, ओके, अंकित शिंदे कुछ प्रॉब्लम है आपको, 26 रोल नंबर, नो मैम। सो आपने रेज हैंड किया है, ओके। सो ये हमने टर्म्स लिखी, कौन सी टर्म है यहाँ पर, अब 0 1 8 9 में कौन सी मिल रही, बी बार सी बार। सो बी बार सी बार 0 1 8 9, देन इसके आगे अगर ये देखते हैं, सो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, 1 3 5 7, 1 3 5 7, और कौन सी टर्म है 1 5 6। सो ये क्या मिल रहा है, ए बार डी, ये दोनों अगर देखते हैं ए बार डी, ये दोनों सेम है, सो एक ही टाइम लिखना है, ए बार डी 1 3 5 7, देन बी बार डी, बी बार डी, ए बी बार डी, बी बार डी, उसके रिलेटेड टर्म है 1 3 9 11, ओके। ये टर्म यहाँ पर लिखी, ये डेसिमल नंबर उसके करस्पॉन्डिंग है वो हमने लिखे, ओके।
आपके यहाँ ये नंबर कौन से हैं? 0 1 2 3 5 8 कोई बता सकता है ये कौन से नंबर है, ये कहाँ से आए हैं? Examples. ओके गुड। सो जो भी एग्जांपल में जो भी नंबर्स है, गिवन एग्जांपल, गिवन मीन टर्म यहाँ पर एज इट इज लिखी, ठीक है। सो इसके बाद अब क्या करना है? क्रॉस करना है। सो क्रॉस किस किस को करना है? अब ये 14 प्रेजेंट है, सो यहाँ पर क्रॉस किया। देन 0 के यहाँ पर क्रॉस, 1 के यहाँ पर क्रॉस, 2 के यहाँ पर क्रॉस, 3 के यहाँ पर क्रॉस। BC बार में 0 के यहाँ पर क्रॉस, 8 के यहाँ पर क्रॉस, 1 के यहाँ पर क्रॉस, 9 के यहाँ पर क्रॉस। देन A बार D के यहाँ पर 1 3 5 7 टर्म में प्रेजेंट है, सो यहाँ पर 1 देन 3 देन 5 एंड देन 7। आफ्टर दैट B बार D, तो यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस आएगा? 1 3 9 एंड 11। ओके, सो ये हमने जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट है वहां पर क्रॉस किया। अब क्या करना है? कॉलम में देखना है। यहाँ पर अगर देखते तो 2 क्रॉस है, सो यहाँ पर सर्कल नहीं आएगा, सॉरी, सो यहाँ पर भी सर्कल नहीं आएगा। यहाँ पर अगर देखते 2 में, सो 2 में एक ही टर्म है, एक कॉलम में एक ही क्रॉस है, तो यहाँ पर सर्कल है। यहाँ पर 3 है, स्किप करना है। 5 में एक सर्कल है, उसको क्रॉस करना है, सॉरी सर्कल करना है। देन यहाँ पर भी सिंगल है सर्कल, यहाँ पर भी सिंगल है सर्कल, देन 11 में भी सिंगल है सर्कल, देन यहाँ पर भी सिंगल है सर्कल। ओके मैम। हाँ बोलो। मैम अगर किसी से मैच नहीं करता होगा, जैसे 14 किसी से मैच नहीं किया, तो ये आखिरी टेबल में लिखना पड़ता है क्या? राइट राइट, वो किसी के भी साथ मैच नहीं हुआ था ना, इसलिए उसको डायरेक्टली एंड में लेके आना है। और कुछ क्वेश्चन है, मतलब यही इसका आंसर है कि मैच नहीं होता तो उसको लास्ट में लेके आना है। हम ये भी क्यों लेके आ रहे हैं? यहाँ पर भी कुछ मैचिंग पॉसिबल नहीं ना अभी, इसकी भी मैचिंग पॉसिबल है क्या? अभी नहीं, इसलिए यहाँ पर स्टॉप हो गए हम लोग। ठीक है, समझ में आया या नहीं? या अगेन कुछ क्वेश्चन है नहीं समझ में यस आया? मैम। ओके नहीं। ठीक है। सो अब क्या करना है? यहाँ पर अभी जहां पर मैंने बताया हर कॉलम में सिंगल, देखो आपने सर्कल किया, राइट? तो सर्कल कहाँ पर आया है? ए बार सी बार, उसको एंटर कर लो। अब ये लाइन में कहा, ये लाइन में भी सर्कल है, ए बार बी बार, ये लाइन में भी सर्कल है, वो भी टर्म आएगी, ये लाइन में भी 2 सर्कल है, लेकिन हमें एक ही कंसीडर करना है कि ये भी आएगी। ठीक है, तो ऑल टर्म्स हमारे जो भी ये सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन का पार्ट है, सो हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो कुछ डाउट है? सॉल्व किया, ये एग्जांपल कंप्लीट हुआ यहाँ पर, तो कुछ डाउट है? कुछ भी क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी। सो ले लूं नेक्स्ट एग्जांपल, यस और नो, या कुछ डाउट है? फिर से बताना है एक आधी स्टेप। नो मैम, समझ में आया। ओके गुड। सो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया वो नॉर्मल था, सिंपल था, हमने सॉल्व किया, राइट? सेकंड एग्जांपल में क्या नया है कि जहां पर एक टर्म ऐसी थी जो मैच नहीं होती, उसको कहाँ कंसीडर करना है? डायरेक्टली लास्ट में। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि ये जो भी टर्म आती है ना, उसमें जो एग्जांपल में जो टर्म लिखे 0 1 2 3 वो सब यहाँ पर दिखनी चाहिए। ओके, तो ये क्रॉस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये सॉल्यूशन कि आपको हर टर्म दिखनी चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें डोंट केयर यूज है, ये थर्ड एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, सो अभी तक प्रीवियस 2 एग्जांपल में मैंने डोंट केयर यूज नहीं किया। सो अगर इफ डोंट केयर अगर आता है एग्जांपल में, सो गिवन एग्जांपल ऐसा है, समेशन ऑफ मीन टर्म 1 3 7 11 15 एंड डोंट केयर है 0 2 5। ओके, सो यहाँ पर ऐसे इसको कैसे सॉल्व करना है? अगेन आप सिंप्लीफिकेशन के लिए सबकी बाइनरी नंबर्स लिख सकते हो, 1 3 7 11 15 11 15 0 2 5। ओके, अब क्या करना है? जो भी डोंट केयर है उसको सिर्फ स्टार लिखा है, जो डोंट केयर टर्म है बाकी की प्रोसेस सेम है। एट द एंड एक चेंज है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, और एक चेंज क्या है, जो डोंट केयर है उसको क्या करना है? आपको स्टार करना है। ठीक है, सो 0 2 एंड 5 ये टर्म जहां भी आएगी वहां पर क्या मिलेगा आपको? स्टार। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको? एनीवन?
मैंने क्या बताया आपको, ये समझ में आया कि अगर डोंट केयर टर्म अगर एग्जाम्पल में है तो क्या करना है उसको? स्टार। ओके, स्टार करना है, बाकी की प्रोसेस सेम है। अब जैसे कि इसमें अगर फर्स्ट है नंबर ऑफ 0 0, नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ 1 कितने यहाँ पर 1, नंबर ऑफ 1 कितने यहाँ पर 2, नंबर ऑफ 1 कितने यहाँ पर 3, नंबर ऑफ 1 कितने यहाँ पर 4। ओके, सो ये प्रोसेस सेम, सिर्फ यहाँ पर क्या डोंट केयर में कैसे लिखा है यहाँ पर स्टार से एक्सप्लेन किया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें मैच करना है, 0 किसके साथ मैच करके देखना है, 1 के साथ, सो मैच है, राइट। सो 0 1 आएगा, सॉरी 0 1 0 0 डैश। ओके, देन नेक्स्ट है 0 1 0 2 के साथ अगर मैच करते 0 0 डैश 0, तो 0 2 के भी साथ मैच है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हो, यहाँ पर सिर्फ डोंट केयर के यहाँ पर स्टार आया, सो यही स्टार आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये स्टेप में किसी को कुछ, सॉरी, ओके, ये स्टेप में किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर जो लिखा है? If you have doubt, please ask me. ओके, सो ये भी स्टेप में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम है स्टेप में, सिर्फ स्टार करना है अगर डोंट केयर है तो। नहीं, कोई तो बोलो एटलीस्ट यस नो। आरती सोनवने, नो मैम। यस मैम। आपको समझ में आई ये जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, जो अब स्लाइड पर है? यस मैम। ओके, डोंट Yes. केयर के अगर एग्जांपल में अगर डोंट केयर आता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है? उस टर्म को स्टार से मार्क करेंगे। ओके, प्रोसेस सेम है, ठीक है। सो यहाँ तक Yes. सेम है स्टेप्स, सिर्फ जो चेंज कहाँ पर है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज जाना है, सिर्फ जो टर्म डोंट केयर वहां पर स्टार स्टार है, ठीक है। आगे अब इस पी आई टर्म में उसमें क्या चेंज रहेगा? पी आई टर्म में भी क्या करना है, लास्ट यहाँ पर हमारे ऐसी कौन सी भी टर्म ने आगे जो मैच नहीं हो रही थी, सब मैच थे, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर पी आई टर्म में कौन सा टेबल देखेंगे, प्रीवियस वाला। सो इसमें अगर चेक करते हैं ए बार बी बार, राइट, और इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म कैसे 0 1 2 3, राइट, ए बार डी, इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म ए बार डी, करस्पॉन्डिंग टर्म से 1 3 5 7, देन सी डी 3 7 11 15, ओके 3 7 11 15। ओके, यहाँ पर भी ये यहाँ तक भी राइट है, सिर्फ इसमें चेंज है। ओके, सो इसमें क्या चेंज है, आपको सिर्फ जो गिवन मीन टर्म है उसमें सिर्फ यही लेना है, डोंट केयर आपको वहां पर कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ कौन सी टर्म कंसीडर करनी है, 1 3 7 11 15, 1 3 7 11 15, इतना ही कंसीडर करना है, डोंट केयर यहाँ पर यूज नहीं करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? Yes, ma'am. ओके, गुड। सो अब क्या करना है, बाकी की अगेन प्रोसेस सेम। सो यहाँ पर क्या सेम है, अगेन यहाँ पर 0 नहीं मतलब उसको डोंट केयर ही नहीं, मतलब इसको क्रॉस करने का कुछ ये मीनिंग ही नहीं है। सो यहाँ पर ओनली प्रेजेंट 1 and 3, सो क्रॉस टू 1 and 3, देन 1 3 7 1 3 7, देन 3 7 11 15। अब इस कॉलम में तो कोई नहीं, ये सिंगल सिर्फ यहाँ पर है। ओके, 1 3 सी डी। कोई किसी के पास नोटबुक है क्या? अभी कोई नोटबुक पर भी कर रहा है? कोई नोटबुक यूज कर रहा है या नहीं? 1 3 7 11 15, सेवन सेवन, यहाँ पर दोनों ही। ओके 11 15, सो यहाँ पर मैम क्या है? CD नहीं है। सी डी नहीं ना, सी डी ही आना चाहिए, यहाँ पर ये बार डी आया है ना। ओके,
किसी के पास नोटबुक है कि प्लीज ये टेबल लिखो तो आप आपके नोटबुक पर, मैं भी ये फिर से ड्रॉ कर रही हूँ साइड बाय साइड। आप प्लीज तब तक है ना प्रीवियस स्टेप एक बार चेक करो, आपके नोटबुक में एग्जांपल लिखना स्टार्ट करो। तब तक ये क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर ये मैं चेक करती हूँ, ठीक है। तो 1 3 then 1 3 7 then 3 7 11 15 11 15। एक मिनट, मैं 1 मिनट आरपी जैन का बुक ओपन करती हूँ, उसी से मैंने एग्जांपल लिया है। ये जब तक मैं चेक कर, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा क्योंकि लास्ट 10 मिनट्स है, आप तब तक बोल सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ये बुक मैंने आपके साथ भी शेयर किया, प्लीज आप लोग भी यूज करो। ओके, सो इसका आंसर ये है क्यों मैंने वो टर्म लिए। ओके, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पर क्या क्वेरी थी? एनीवन, आप हो ना? एनीवन यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कहाँ पर हम प्रॉब्लम में है यहाँ पर? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर एज पर रूल यहाँ पर क्या आना चाहिए था? CD, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया, राइट? यस मैम। ओके, सो CD ये कंपलसरी है, लेकिन ऑल यहाँ पर A बार D क्यों लिया, फिर A बार B बार क्यों नहीं लिया है, राइट? सो यहाँ पर एक और एक है, प्रीवियस इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, इसलिए वो बताने का कोई जरूरत नहीं आई, लेकिन यहाँ पर है CD, ये राइट है। CD में कौन कौन सी टर्म कवर होती है? 3 7 11 15। ओके, 3 7 11 15। ओके, सो यहाँ पर एक 1 ऐसा है जो इसमें कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 1 3 7 है, तो यहाँ पर 1 कवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिया A बार D। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर A बार B बार क्यों नहीं ले, क्योंकि इसमें तो एक्चुअली 2 ही टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स मिल रही है, ठीक है। तो मेजोरिटी इस टर्म में मिल रही है, इसलिए A बार D बार लिया, A बार D लिया है। आंसर समझ में आया या नहीं? फिर से बोलना है तो बोल दो आप। मैम फिर से बोलना। ओके ओके ओके, एज पर रूल मैंने बताया था कि जो कॉलम में क्रॉस है वही लेना है, सो आप यही लेते, राइट? CD। लेकिन इसमें एक और एक चेक कर, क्या करना है, क्या आपको क्या करना है कि सब टर्म भी कवर होनी चाहिए। कौन कौन सी? हमारी जो मेन इनपुट वाली टर्म 1 3 7 11 15। तो यहाँ पर टर्म कवर हो रही 3 7 11 15, लेकिन 1 नहीं मिल रहा है, राइट? सो 1 के लिए हमें अगेन कहाँ पर ये 1 मिल रहा है? हमें A बार D में मिल रहा है, राइट? सो आप बोलते कि A बार B बार में भी तो 1 है, तो क्यों A बार D लिया? लेकिन अगर हम देखते हो तो जो भी गिवन इक्वेशन में है ज्यादातर 3 टर्म्स यहाँ पर मिल रही है, राइट? सो इसीलिए A बार D लिया है। डोंट केयर को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। फर्स्ट चीज तो ये थी, यहाँ पर 2 डोंट केयर और 2 गिवन एक्सप्रेशन की थी। और अगर यहाँ पर देखते तो गिवन एक्सप्रेशन के यहाँ पर 3 टर्म्स है, और हमारे जो भी मेन 1 हमें चाहिए था वो 1 भी यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए A बार D लिया। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखते, यहाँ पर 0 1 3 7, ये इतने भी टर्म इस
एक्सप्रेशन में कवर हो रहे थे, इसलिए मैंने वो बताया नहीं और या वो बताने की कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें भी सेम था, इसमें भी ये जितनी भी टर्म्स थी वो इस इक्वेशन से कवर हो रही थी, इसलिए वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। अगर यहाँ पर देखते 0 1 8 9 3 7 11 50 अगर आप चेक करते हो तो आपको मिल जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन होगा आपको तो आप घर पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो उस बुक में भी दिया है, ठीक है। समझ में मैंने क्या बताया आपको? यस और नो? अगर नहीं होगा तो प्लीज नो बोलो, फिर से अगर अलग वे से मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, अगर वो नहीं समझ में आया होगा तो। यस मैम। ओके गुड। सो यहाँ पर था क्वाइन-मैक-क्लस्की मेथड, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा एक मतलब अभी जो भी एग्जांपल्स मिनिमाइजेशन टेक्निक यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर 3 मिनिमाइजेशन टेक्निक कंप्लीट के फर्स्ट यूनिट का यही पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा था, सो वो कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद के जो भी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, ठीक है। तो आज अगेन जो 5 मिनट्स में मुझे जो आज एक्सप्लेन करना वो ये है कि मैंने कल आपको बताया कि आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, सबमिट करना है, राइट। तो प्रैक्टिकल सबमिट करना है तो मैंने ऐसे बताया था आपको पीडीएफ फाइल में भी पीडीएफ फाइल में ही कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल कैसे अपलोड करना है। प्रैक्टिकल कैसे एक्सप्लेन करना मतलब अपलोड करना, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, सो मेरे पास क्या है, ये मैंने सबको दिया है, प्लीज कोई अनम्यूट करके ना मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी प्लीज उसका आंसर देते रहो, ठीक है। ये सबको मिला है ऐसा वाला पेज सबको? यस और नो? यस। ओके, ये मैंने पेज दिया है, आपके ब्लॉग पर भी है और सेकंड थिंग यहाँ पर भी है गूगल क्लासरूम में। सो ये पेज ओपन करना है, मोबाइल में भी आप ओपन कर सकते हो, उसमें एडिट करना है। एडिट क्या करना है, आपका नाम डालना है, आपका जो भी रोल नंबर रहेगा वो डालना है और आपकी बैच डालनी है, ठीक है। इसमें इतना ही एडिट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीट ये समझ में ये पेज का क्या करना है? यस मैम। ओके, इसको कन्वर्ट करो पीडीएफ में। सेकंड स्टेप समझ में आई? यस और नो? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. एडिट Yes, ma'am. करना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन में डाल दो कि हाउ टू कन्वर्ट पीडीएफ। अब यहाँ पर भी ये एक जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये मुझे सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन ऐसा है ये पीडीएफ, तो यहाँ पर जो भी हम बहुत इजीली जेपीजी टू पीडीएफ यहाँ पर बहुत इजीली हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं कौन से भी फॉर्मेट से, ओके ठीक है। तो ज्यादातर ये मैं यूज करती हूँ, आपके पास कौन सा भी अगर रहेगा तो आप उसको क्या करना है वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्ट करो, तो वो 2 पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या करना है आपको, राइट अप लिखना है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, कल किसका क्वेश्चन तक हम टाइटल लिखे, क्या प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन से आउटपुट तो आपको अटैच करना है और कंक्लूजन लिखना है एंड ये 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय फुल एडर इम्प्लीमेंट, सो इसके भी आंसर मेरे ब्लॉग पर भी है, वहां पर रेफरेंस करके लिखा है, आपके मैनुअल की लिंक दी है और आगे रेफरेंस है। सो रेफरेंस अगर ओपन करते हो तो उसमें इसके आंसर भी मिल जाएगा आपको, या आप नेट से भी ढूंढ के लिख सकते हो, ठीक है। आरपी जैन का बुक है उसमें भी ये आंसर है। सो ये लिखना है। सो ये कहाँ पर लिखना है, आप कौन से भी पेजेस ले लो, आपके नोटबुक के ले लो, आपके पास पेजेस जो भी रहेगा। सपोज ये फुल एडर का आंसर नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि एक पेपर पर लिखा, उसका स्नैप अगर कैम स्कैनर है तो उससे स्कैन करो या सिंपल फोटो निकालो, फोटो निकाल लिया मैंने, ठीक है। सो ये 2 पेजेस का सपोज मेरा राइट अप आया, तो ये राइट अप ऑब्वियसली जेपीजी फॉर्मेट में अगर है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जाना है एंड जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप हो गए, राइट अप लिख कर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करो, ठीक है। राइट अप लिखना है, फोटो लेना है, फोटो लेने के बाद उसको क्या करना है, अगर जेपीजी फॉर्मेट है तो पीडीएफ में कन्वर्ट करो। ये होने के बाद क्या करना है, आप कहाँ पर आपका प्रोग्राम कर रहे, सपोज ये कल मैंने इसमें डिजिटल वर्क में बताई, सपोज ये हाफ सब्सट्रैक्टर था और क्या बताया था कल, और एक एक्सप्लेन किया था आपका ऐप से। अगर आप यूजिंग ऐप भी करते हो, तो सपोज यूजिंग ऐप आपने ये बनाया, ठीक है।
सो ये दोनों को क्या करो, एक फाइल में पीडीएफ में कन्वर्ट करो, ठीक है। सो जेपीजी को क्या करना है, फाइल में कन्वर्ट करना है। ये किया मैंने। बाद में मतलब अभी तक मेरे पास क्या है, मेरे पास मेरा जो भी मेरे नाम वगैरह वो लिखा, देन राइट अप है और मेरी डायग्राम है आउटपुट वाली, ठीक है। अब ये सब को क्या करना है, मुझे कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करोगे, ये सॉफ्टवेयर जो भी ऑनलाइन है उसमें क्या करना है, मर्ज पीडीएफ में जाना है। मर्ज पीडीएफ में जाने के बाद सिलेक्ट पीडीएफ फाइल करनी है। सपोज मेरे पास कौन कौन से पीडीएफ है, मैंने एक सैंपल जहां पर मैंने नाम लिखा उसकी पीडीएफ लिख की है, देन राइट अप के एंड डायग्राम के, इसको सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करते तो उसका सीक्वेंस चला जाएगा। सो क्या करना है आपको, सिलेक्ट पीडीएफ करना है। फर्स्ट आपको क्या चाहिए, फ्रंट पेजेस चाहिए, देन ऐड मोर फाइल करनी है, देन इसके बाद क्या करना है, राइट अप चाहिए मुझे, राइट अप, देन इसके बाद शिट, फर्स्ट क्या है, सबमिशन, देन सेकंड वन इज द राइट अप एंड सेकंड वन इज द